Hello friends, welcome to Make My Exam once again. I am Sajid Khan. Today I am going to start noun and its kinds. Look at the board. But before taking the initiatives, I would like to ask you a question which was given before, right? And the question was, she enjoyed the of the crowd. Look at this question. ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में दिया था कि she enjoyed the dash of the crowd. अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा appropriate वर्ड आएगा. laugh, laughing, laughter, laughterful. Here look at this. It is noun and the is used noun of noun. मीन्स यहाँ पे जो सबसे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नाउन. ओके, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या लेंगे, लाफ्टर. ओके, तो शी इंजॉयड द लाफ्टर ऑफ द क्राउड. लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि नाउन 5 तरह के होते हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. Okay, the first one was proper noun. Second one is common noun. And the third one is collective noun. And the fourth one is material. And सो प्लीज़ लिसन टू मी अटेंटिवली. देखो ये 5 प्रकार हैं नाउन के, राइट. एंड डू यू नो प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स प्रॉपर नाउन टॉक्स अबाउट द प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग एंड प्रॉपर क्वालिटी. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, राम, इंडिया, टॉमी, etc. Okay, it talks the particular name of a person, place or thing, etc. Look at the second one is common noun, right. Common noun किसे कहते हैं. It talks about the common person, common place and common thing, right. Means a word which is common to all is called common noun. For example, देखो, boy, country and dog, etc. देखो, boy ये एक common noun है, but if you talk about a particular boy then it becomes Ram, right. Ram is a proper noun. Country, there are many countries. Okay, ये common noun है, but if you talk particular India then it is called proper noun. Third one is dog. Dog is a common noun, जातिवाचक संज्ञा, right. लेकिन अगर हम प्रॉपर डॉग की बात करें, उसमें नाम रख दिया जाए टॉमी, तो ये कौन सा नाउन है, ये है प्रॉपर नाउन. ओके, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन. देखो, कलेक्टिव का मतलब समूह होता है, समूहवाचक संज्ञा, राइट. इट टॉक्स अबाउट द ग्रुप ऑफ अ नाउन, राइट. अ ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल बंच, bunch of flowers, bunch of keys, jury, jury of judges. Okay, team, team of players, etc. इसे कहते हैं collective noun. Okay, look at the fourth one. The fourth one is material noun, right. Material noun means it talks about the materialistic things. Okay, for an example, oil, water, sugar, ghee, etc. Okay, these are called material noun. The fourth one is abstract noun. Abstract noun talks about the condition and state of a noun. For example, love, kindness,
honesty, etc. Okay, what actually you have to remember whenever you discuss okay proper noun, तो proper noun का जो पहला लेटर फर्स्ट अक्षर ये क्या आना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, राम, इंडिया, टॉमी. ओके, बट कॉमन के साथ कोई नहीं, ये फर्स्ट पार्ट आ सकता है, लेकिन इसे कॉमन नाउन में क्या करेंगे, एक स्मॉल में होता है. फॉर एग्जांपल देखो, एक वर्ड है राम एंड दूसरा वर्ड है रैम. ओके, ये है नाउन. कौन सा नाउन है ये, प्रॉपर नाउन, एंड द सेकंड वन इज कॉमन नाउन. रैम कहते हैं किसे, मेल शीप. ओके, नाउ देखो इस नाउन को भी दो पार्ट में बांटा गया है. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ये काउंटेबल नाउन, एंड द सेकंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, a noun which is counted is called countable noun, whereas a noun which cannot be counted is called uncountable noun. देखो, मुझे आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूं. ओके, कि देखो इसका क्या इंपॉर्टेंस है. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था. A herd of sheep is grazing in the field. A herd of sheep is grazing in the field. Okay, first part a herd of sheep, second one is the is grazing in the field, and D में no error, right? देखो, here the word sheep is a common noun and herd is a collective noun, that's all group. Okay, अब आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है. तो देखो, you have to remember कि भेड़ों के झुंड को हर्ड नहीं कहते. हर्ड जो होता है कलेक्टिव नाउन, कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ कलेक्टिव नाउन के बारे में, राइट. अ हर्ड ऑफ क्या होता, कैटल होता, पशु मवेशी, लाइक काउज, बफेलोज एट्सेट्रा. अगर हम भेड़ों की बात करें तो क्या लगाएंगे, अ फ्लॉक ऑफ शीप. ओके, तो कौन से पार्ट में एरर था, फर्स्ट पार्ट में. हर्ड ऑफ शीप नहीं कहेंगे, अ फ्लॉक ऑफ शीप. यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लॉक. ओके, लुक एट वंस अगेन. इफ आई से अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स is flying in the sky. तो देखो, इस क्वेश्चन को कब सॉल्व करोगे, जब आपको काफ़ी कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पता हो. अब ये देखो कि बर्ड्स के झुंड को क्या कहते हैं. ओके, आपको तो ये पता होगा जो बर्ड है वो क्या है, ये है कॉमन नाउन. फ्लॉक है, बर्ड्स के झुंड है, इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन. लेकिन आपको देखना है क्या सेंटेंस के सेंस के अनुसार अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ किया गया है. तो व्हाट एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर, अ फ्लॉक ऑफ शीप और बर्ड्स दोनों होता है. ओके, बर्ड्स के भी समूह को क्या बोलते हैं, फ्लॉक. ओके, बट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस, ओके, देयर इज एन एरर. वो देखो कौन सा एरर है, क्या याद रखना है कि अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होता है और अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स ये भी होता है. जब बैठा हुआ झुंड हो तो हम उसे फ्लॉक बोलते हैं, बट पक्षियों का जब उड़ता हुआ झुंड हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लाइट. एंड द क्वेश्चन सेज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग. फ्लाइंग मीन्स उड़ता हुआ झुंड है. ओके, इसीलिए इस पार्ट में एरर आ गया. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. ओके, तो मैं आपको कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिखवा दूँ ताकि आसानी से याद हो जाए. और वो क्या है, देखो, और इट विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग क्लोज टेस्ट एज वेल, राइट. जैसे देखो, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं फिलर्स में, अ डैश ऑफ चिकन्स, एंड ऑप्शंस क्या होता,
host, brood, litter, and herd. Okay, so here there are 4 options: host, brood, litter, herd. ये जो 4 options हैं and these 4, ये चारों क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स, राइट। अब सेंटेंस के सेंस के अनुसार आपको फिल करना होगा। अब देखो होस्ट किसे कहते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर कि होस्ट किसे कहते हैं? अ होस्ट ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का झुंड। ओके, अ ब्रूड, अगर हम ब्रूड की बात करें तो अ ब्रूड ऑफ चिकन्स या चिक्स। ओके, अ लीटर, देखो अ लीटर ऑफ पपीज, पिल्ले, अ लीटर ऑफ पपीज, किटेन्स, पिगलेट्स, एट्सेट्रा। ओके, तो एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं उनके झुंड को क्या कहते हैं? लीटर। इस लीटर का एक और मीनिंग क्या होता है? गंदा करना। डोंट लीटर दिस प्लेस, राइट। लेकिन जब ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ किया जाए तो एनिमल्स के बच्चे को लीटर कहा जाता। और अ हर्ड के बारे में मैंने बताया कि हर्ड किसे कहते हैं? अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ काउज, अ हर्ड ऑफ बफेलोज, एट्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह से कुछ और याद रखो। अगर हम यूज़ करें अट्रोप, TROUP, जो कि एक गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछा गया है, अट्रोप ऑफ व्हाट, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, TROUPE एंड TROOP। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स विजिटर्स, विजिटर्स, एक्टर्स, डांसर्स, एट्सेट्रा। इनके झुंड को क्या कहा जाता? ट्रूप। और अ ट्रूप ऑफ लायंस, monkeys, soldiers, etc. See the difference. Okay, इसी तरह से कुछ और हैं which you have to remember. Okay, and these collective nouns must be on the tip of your tongue. Okay, see here, if I write here a gang of sailors, okay, तो देखो आपको ये कलेक्टिव नाउन याद रखना है कि सेलर्स के ग्रुप को हम गैंग नहीं कहते। गैंग किसे कहते हैं? गैंग का यूज हम कब करेंगे? अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, अ गैंग ऑफ गून्स। गून्स मीन्स क्या होता है? गुंडे, आवारे, राइट। अ गैंग ऑफ थेफ्ट्स, अ गैंग ऑफ टेररिस्ट, एट्सेट्रा। ओके, तो फिर हम इसके झुंड को क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्रू, अ क्रू ऑफ सेलर्स या बोटमैन। तो कलेक्टिव नाउन का सही यूज करना सीखो। अ क्रू ऑफ सेलर्स या बोटमैन, राइट। इफ आई से अ क्रू ऑफ शिप्स, अ क्रू ऑफ शिप्स, तो यू हैव ऑलरेडी लर्नड कि क्रू किसे कहते हैं? शिप्स के तो ग्रुप को नहीं कहते, राइट। तो शिप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? अ फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ओके, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ कार्स, अ फ्लीट ऑफ बसेस, एट्सेट्रा। इसी तरह आपको क्या याद रखना है? an army of soldiers या ants, इनके भी ग्रुप को क्या बोलते हैं? बट अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? अस्वर्म, अस्वर्म्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, जैसे स्पाइडर्स। ओके, स्पाइडर्स और जितने भी छोटे कीड़े मकोड़े हैं, मॉस्किटोज, बीज, फ्लाइज, इनके झुंड को क्या बोलते हैं? स्वर्म। ओके, अ कोर ऑफ
singers, a band of, okay, a band of musicians, a band of musicians या nomads. nomads किसे कहते हैं? those people who are homeless and wander from place to place, जिसे हम क्या कहते हैं? से बंजारे, राइट, खाना बदोश, इनके जिनको क्या बोलते हैं? बैंड. इसी तरह अगर हम पाइल की बात करें तो पाइल किसे कहते हैं? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. जैसे देखो, अ पाइल ऑफ चेयर्स, अ पाइल ऑफ बुक्स, एटसेट्रा. तो पूछा जाए आपसे कि अ पाइल ऑफ स्टिक्स इन विच द डेड बॉडी इज बर्न्ड इज कॉल्ड, क्या बता सकते हो? अ पाइल ऑफ स्टिक्स इन विच द डेड बॉडी इज बर्न्ड इज कॉल्ड फायर, चिता. ओके, अब इसे हम क्या कहते हैं? अ बंडल ऑफ बुक्स, a heap of what? Heap means ढेर. A heap of garbage, कूड़े करकट का ढेर. A heap of grain, a heap of pearl, etc. तो इनके जिनको क्या बोलते हैं? heap बोलते हैं, राइट. A bouquet of what? बुके किसे कहते हैं? अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स. देखो, अ ज्यूरी ऑफ जजेस. तो जजेस का कलेक्टिव नाउन क्या कहलाता है? ज्यूरी या अ बेंच ऑफ जजेस. ओके, अ बेंच ऑफ जजेस. याद रखो, कमिटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है. किससे मिलकर बनता है? अ कमिटी ऑफ मेंबर्स. कई मेंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? कमिटी बनाते हैं. अ टीम ऑफ प्लेयर्स, राइट. सो आई होप यू विल enjoy by mugging up these collective nouns. देखो, if I write here an assembly of people, okay, or if I write a crowd of people and a mob of people, क्या आप इन तीनों में अंतर बता सकते हो? डू यू नो द डिफरेंस? देखो, लोगों के झुंड को क्या कहते हैं? असेंबली भी कहते हैं, क्राउड भी कहते हैं. और तो देखो, अगर ये भीड़ यूं ही इकट्ठा हुई है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लोगों के झुंड को. जैसे बस में, ट्रेन में अगर कोई भीड़ हो तो उस भीड़ का क्या नाम है? अ क्राउड ऑफ पीपल, राइट. लेकिन अगर वो उस भीड़ के अंदर मालाफाइड इंटेंशन है, वो एक जगह इकट्ठे हुए किसी का नुकसान पहुँचाने के लिए, ओके, वो बदमाश हैं, तो फिर इनका नाम क्या है? मॉब, अ मॉब ऑफ पीपल. लेकिन अगर उनका बोनाफाइड इंटेंशन है, अच्छे इरादे से इकट्ठा हुए हैं, कुछ काम परफॉर्म करना है, तो क्या बोलेंगे? एन असेंबली ऑफ पीपल, राइट. तो जब कभी अ मॉब ऑफ यूज हो, इसका मतलब क्या हो गया? एंग्री पीपल. पीपल मीन एंग्री पीपल, अ मॉब ऑफ एंग्री पीपल. ओके, अ मॉब ऑफ. इसी तरह से देखो, क्या वर्ड है? अ कारवां ऑफ पिलग्रिम्स, अ कारवां ऑफ पिलग्रिम्स या मर्चेंट्स. कारवां ऑफ पिलग्रिम्स या मर्चेंट्स. पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थ यात्रा पे लोग निकलते हैं, या फिर जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कारवां. देखो, अ वॉली किसे कहते हैं? तो सही शब्दों के साथ सही कलेक्टिव नाउन का यूज सीखो आप. ओके, अ वॉली ऑफ एरोज, बुलेट्स, हिंदी में कहते हैं बौछार, ओके, एटसेट्रा.
a volley of stones, a volley of rotten eggs. देखो, a chain of mountains, a range of mountains, a cluster of, तो क्लस्टर किसे कहते हैं? अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स. ओके, इसे और क्या कहा जाता है? अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. एंड देयर आर मैनी मोर कलेक्टिव नाउन्स. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर एट ए ग्लांस. अब देखो, एक कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या है? ज्यूरी. Okay, this word is a collective noun. Jury means a jury of judges, right? देखो, how can this word be used as a singular or plural, right? देखो, jury singular verb भी लेता है और plural verb भी लेता है. If I say the jury has given its opinion. ओके, तो हम ज्यूरी यहाँ पे किसी अ ग्रुप ऑफ जजेस, राइट. अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ किया गया है. ज्यूरी हैज़ गिवन, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया और यहाँ पे क्या लिया गया है? इट्स. लेकिन अगर हम इसी ज्यूरी को क्या करें? द ज्यूरी हैव बीन डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. Look at the both sentences carefully. What makes them difference? So here both the subject is jury and jury, right? But since इस पार्ट में देखो ये वर्ड डिवाइड हो चुका है, तो jury have been divided. यहाँ पे क्या यूज करेंगे? Have been divided. And possessive केस कौन सा यूज करेंगे? Their opinion. But in the first sentence the jury has given its opinion. Okay, so that makes difference. Means collective noun का यूज सिंगुलर की तरफ यूज कर सकते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, बाकी दो और क्या है? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो मैंने ये किसे बताया था? देखो, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, जैसे वाटर. ओके, इफ यू से वाटर्स देन द मीनिंग विल बी चेंज. ओके, वाटर्स मीन्स समुद्र, सागर, और वाटर मीन्स पानी. अब हमें अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस सही वर्ड का यूज़ करना है. तो देखो, ये सीखो आप, चूँकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन आप अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंटेबल बना सकते हो. जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आई हैव मैनी वर्क टुनाइट. अब देखो, यहाँ पे वर्ड है जो मैनी और वर्क, राइट. वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. इसको काउंटेबल बनाओ. काउंटेबल कैसे बनाएंगे? अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ एडवाइस. ओके, इस तरह से याद रखो. इनके लिए क्या आता है? पीस. यहाँ पे यूज़ किया गया मैनी, तो क्या बन जाएगा? मैनी पीसेज ऑफ वर्क, मैनी पीसेज ऑफ वर्क. ओके, if I say I eat a bread in my breakfast. तो देखो, ब्रेकफास्ट क्या है? ये ब्रेड क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पे ए अनकाउंटेबल के साथ ए एन का यूज़ नहीं किया जाता. तो इसे काउंटेबल बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा? अ लोफ ऑफ ब्रेड. अब ये क्या होता है? अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और अ पीस ऑफ ब्रेड. जब हम पूरी गोल रोटी की बात करेंगे तो क्या लेंगे? अ लोफ ऑफ ब्रेड, राइट. लेकिन जब उस रोटी को आप तोड़ दो तो फिर क्या नाम हुआ? अ पीस ऑफ ब्रेड. और जब चाकू से काट के निकालते हैं ब्रेड को, स्लाइस बनाते हैं उसका सैंडविच खाने की, तो क्या बोलेंगे? अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, राइट. इस तरह से कई कंसेप्ट हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी. इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे. ओके, यू शुड ट्राई टू रिमेंबर, प्रैक्टिस इट. इसे याद भी करो. बाकी फिर इसको और मैं चर्चा आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में करूँगा. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. ओके, वॉच इट केयरफुली, प्रैक्टिस इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. दैट्स ऑल. थैंक यू.